بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چلتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ جنتیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کے دلوں کو صاف کرے گا، پاک کرے گا اور پھر جنت میں ڈالے گا. تو اور پھر ہم نے آگے دیکھا اسی آیت کے اندر کہ یہ جو لوگ ہیں، جو جنتیاں ہیں، تو یہ لوگ اللہ سے کیا کہیں گے اس وقت کہ یہ جو کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے، جو بھی جنت کی نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے، یہ جنتی کہیں گے، یعنی دے ول ناٹ فیل پراؤڈ کہ یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جنت ملی ہے. یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے یہ سب ہماری وجہ سے نہیں ہے. دے ول سے لائک دس، بلکہ یہ اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہے. یعنی جنت میں بھی وہ لوگ تکبر نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے ہی بڑائی کریں گے، اللہ کے شکر گزار ہوں گے. جیسے کہ دیکھو، ہمیں کبھی کچھ ملتا ہے دنیا میں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے اتنی محنت کری تھی بلکہ مجھے ملا. بولتے کہ نہیں بولتے ہم لوگ؟ ہاں، میں نے ایسا کری تھی، میں نے یہ کری تھی، میں نے وہ کری تھی، بلکہ مجھے یہ ریوارڈ ملا. یہ ایسا کچھ بھی جنتی نہیں کہیں گے. جنتی کہیں گے یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے بخشا تھا، ہدایت کے راستے پر اللہ نے چلایا تھا، اسی وجہ سے ہمیں یہ سب ملا ہے. اور اللہ کا وہ شکر بجا لائیں گے وہاں پر. اور یہ بھی کہیں گے کہ رسولوں نے ہمیں جو کہا، یعنی اللہ کا میسج ہم تک کون پہنچایا؟ رسولوں نے. تو کہیں گے کہ رسول سچے تھے، انہوں نے جو کچھ کہا ہم نے 100% سچ پایا. یہ لوگ وہاں پر اعتراف کریں گے. دے آر کنفرمنگ کہ یہ چیز سب ہم نے سچی پائی ابھی یہاں پر آخرت میں. اور اعلان ہوگا جنتوں کے لے کے تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہیں، مگر اعمال بھی اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتے ہیں. تو دیکھیں اللہ سے دعا کرنا کتنا ضروری ہے. ہم میں سے کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ میں نیک راستے پر چلوں گی، میں اللہ کی ہدایت کے راستے پر چلوں گی. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا unless and until اللہ توفیق دے. اللہ ہمیں اجازت نہیں دے گا، ہم کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے. تو یہ صرف کیا ہے؟ اللہ کی وجہ سے اللہ نے توفیق دیا اور اللہ کی رحمت ہوئی ہم پر، اس لیے آج ہم جنت میں ہوں گے. تو یہاں پر حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے. یہ حدیث میں پتہ چلتا ہے، یعنی ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، جلن، حسد، کینہ، کپٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنے کلین ہوں گے. اور جنت کے جو تعلقات کیا ہوں گے جنتی کے آپس میں؟ یہ ہم بھائی بھائی ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی لائک اے خاندان، ون فیملی. وی ول بی آل لائک اے ون فیملی. تو یہ ہوگی جنت. جنت کا نقشہ دیکھیں یہاں پر کھینچا گیا ہے. تو دلوں کی صفائی عملی نتیجہ یہ بھائی چارگی. جب ہم بھائی ایک دوسرے سے، بھائی بہن ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہاں پر برائی آنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ صرف جنت نہیں بلکہ صاف دل کے ساتھ جنت ہوگی. اور دنیا میں دل کی صفائی کی ہمیں مشق، یعنی دنیا میں ہمیں دل کی صفائی کرنا ہے، اور یہ پریکٹس ہمیں کیا ہوگی؟ جنت میں بلندی عطا کرے گی. یعنی ہم ہمیشہ سوچنا ہے ہمارا دل کس طرح سے صاف رکھیں گے، تو یہی چیز ہمیں جنت میں بلندیاں عطا کریں گی. اور دنیا میں دل کی صفائی، پھر آگے ہدایت. ہدایت اللہ کی ہمیں ملی ہے تو ہمیں ہر دم اللہ کا بس تھینکس کرنا ہے، شکر بجا لانا ہے. رسولوں کی بات ماننا ہی نجات کا راستہ ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. رسولوں کی بات ہمیں ان کی اطاعت گزاری کرنا ہمارے لیے فرض ہے. تو آگے چلتے ہیں 44 میں. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد
रब्बुकुम हक्का क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। और जन्नत वाले दोजख वालों को पुकार कर कहेंगे, गौर करें ये बात, जन्नत वाले दोजख वालों को पुकार कर कहेंगे, हमने तो सब कुछ पा लिया, सब सच है, हमने जैसा हमें दुनिया में मालूम हुआ था वो सब कुछ सच है, रब का वादा हक है और सच है। तो क्या तुमने भी ये वादा या जो कुछ तुमने भी सुना था वो हक पाया क्या? जन्नती जहन्नमियों से पूछ रहे हैं। हमने तो हर चीज हक सच पा ली, अल्लाह का वादा यहाँ हमें पा लिया, सच्चा हो गया, क्या तुम्हारे लिए भी यही कुछ हुआ है? तो वो लोग कहेंगे हाँ, हमारे लिए भी यही कुछ हुआ है। फिर एक पुकारने वाला इनके दरमियान में ऐलान करेगा, दोनों के बीच खड़े रहकर, कि अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। तो वहां भी जहन्नमियों पर लानत भेजी जाएगी अल्लाह की। लानत का मतलब है अल्लाह की ब्लेसिंग हरगिज हरगिज नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी, नौज बिल्ला। तो यहाँ पर देखें, ये आयत कयामत की इबरतनाक जो हमें बात होगी हमारे अंदर जन्नती और दोजख के बीच जो बात होगी उसका मुकालमा यहाँ पेश किया गया है। हम किस तरह से बात करेंगे एक दूसरे से। जन्नतियों का सवाल हमने सुना, यानी जन्नत वाले दोजखियों से क्या कहेंगे ये हमने सुना, कि हर चीज उन्होंने सच पाई, अल्लाह का वादा सच पाया हमने। और दोजख की भी इकरार करेंगे कि अल्लाह ने हमारे लिए जो कहा था दुनिया में कि इनकार करोगे तो फला पनिशमेंट मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, सो एंड सो, ये तमाम चीजें हमने भी सच पाई हैं, यानी अल्लाह का वादा हमारे हक में भी सच्ची हो गया है। तो वो दोजख की इतराफ करेंगे। अल्लाह का अज़ाब, वईदे या रसूलों की ये तमाम बातें सच हो जाएंगी, मगर आखिर में जो ऐलान होगा, जो कि एक मुनादी ऐलान करेगा अल्लाह के जालिमों पर लानत, मतलब किस पर लानत होगी? जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, शिरक किया अल्लाह के साथ, हक का इनकार किया, रसूलों की नाफरमानियां की, तकब्बुर और जिद किया। तो क्या बताता है हम सबको कि कयामत के दिन फैसला बिल्कुल मुनासिफाना होगा, यानी इंसाफ, अदल और इंसाफ जो बोलते हैं ना, राई के दाने बराबर भी ना इंसाफी नहीं होगी कयामत के दिन। किसी का पल्ला अल्लाह ताला यूं ही नहीं लेगा, भारी करेगा, बल्कि इंसाफ के साथ करेगा, पूरी पूरी इंसाफ होगी। और जुल्म को उनका भी, उनके साथ भी इंसाफ के साथ उनका रिवार्ड उनको मिलेगा। तो जहन्नम और जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो पुकार कर कहा जाएगा वो है, एक हदीस जो मालूम पड़ती है, कयामत के दिन एक मुनादी आवाज लगाएगा कि अल्लाह की लानत हो जालिमों पर, नौज बिल्ला। तो यहाँ पर हक का इकरार मगर बेफायदा। उस वक्त अगर उन्होंने कहा कि हम अपने रब का इकरार करते हैं, हम ईमान लाते हैं, तो उस वक्त कोई कोई फायदा इन्हें नहीं देगा उनका अमल। आगे जाते हैं 45। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। यानी जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, इसमें टेढ़ तलाश करते थे और आखिरत का इनकार करते थे, तो ये जालिम लोग हैं ना, ये लोग जालिम हैं। अभी क्या करते थे ये लोग? लोगों को अल्लाह के रास्ते में जाने से रोकते थे और टेढ़ तलाशते थे, यानी कुछ का कुछ दीन के बारे में बोलने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते थे और आखिरत का इनकार करते थे। तो इसमें अल्लाह ताला क्लियर कर रहा है कि किन लोगों पर लानत की जाएगी, कौन होंगे वो लोग जिन पर लानत की जाएगी, और वो क्यों अजाब के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला यहाँ पर इस आयत में क्लियर कर रहा है कि ये लोग खुद भी हिदायत पर नहीं चलते थे और दूसरों को भी जाने नहीं देते थे, रोकते थे कुछ का कुछ झूठ बात करके, अफवाहें फैलाकर, कंफ्यूजन डालकर लोगों को सही रास्ते पर जाने ही नहीं देते थे। ये आज भी यही हो रहा है, हमारे मुआशरे में आज भी यही चल रहा है। वो क्या बोलती है,
वो क्या बोलती, वो क्या पढ़ती, उनको क्या आता ही, हाँ, का क्यों जाते वहां पर सुनने को, वो क्या बोलती है, वो किस तरह से बोलती है। देखिए ये सब शैतानी हरबे हैं, ये सब शैतानी चालें हैं। क्यों? अगर हक के रास्ते में आप अगर आ गए, सच आपके ऊपर खुल गया, तो आप सही रास्ते पर चलोगे। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर जहां पर हक बताया जा रहा है वहां पर आप चलोगे नहीं, वहां पर आओगे नहीं, वहां बैठोगे नहीं, तो सुनेंगे नहीं हक, सुनेंगे नहीं तो चलेंगे नहीं हक पर। यही तो शैतान चाहता है, राइट? यही तो चाहता है शैतान। हमारे में वो जुस्तजू होनी चाहिए, हमारे में मेहनत, वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम हक बात तलाश करें। हम हक बात कहाँ से तलाश करेंगे? दुनिया में वाहद दो ही चीजें हैं हक बात के लिए, कुरान और हदीसें। इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं है हक बात का। तो जहां पर कुरान पढ़ा जाता है, जहां पर कुरान समझाया जाता है, वहां हमें जाना चाहिए। क्यों? वहां से हमें क्या मिलेगा? हक बात मिलेगा। जो शैतान नहीं चलता, चाहता कि हम इस राह पर चले, ये क्या करता है? ये प्रोपेगेंडास करता है, ये गलत फहमियों को आम करता है, लोगों को कंफ्यूजन्स में डालता है, ताकि ये हक पर नहीं आ सके। और दीन का टेढ़ निकालना मतलब क्या? जो हक बात है उसको तोड़ तोड़ कर पेश करना, तोड़ मरोड़ कर, सीधे सीधे नहीं, कंफ्यूज करना इंसान को, कि वो इंसान सुने भी तो चले भी नहीं इसके पर। यानी इंसान जब शक में आता है तो कभी किसी अमल को करना ही नहीं चाहता। जब तक कि वो चीज क्लियर नहीं होती इंसान कर ही नहीं सकता। ये लोग क्या करते हैं? कंफ्यूजन पैदा करते हैं, आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और अपनी मर्जी डालते हैं, तावीलें डालते हैं अपनी तरफ से, और घड़ घड़ कर डालते हैं, अपनी खीसों में से घड़ घड़ कर डालते हैं। मैं ये बात इंशाल्लाह कल बहुत ज्यादा वाजे करूंगी। और दीन को क्या है, ये मुश्किल नाकाबिले अमल बनाते हैं। यानी हमें लगे अरे ये कितना मुश्किल है दीन, क्यों भाई जाना, नहीं 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 नहीं, चुप बैठो घरों में, नहीं जाना चाहिए। इतना मुश्किल दीन बना देता है ये शैतान, ये शैतानी लोग। आज शैतान नजर तो नहीं आता, लेकिन लोगों पर शैतान हावी जाता है और वो हमारे रास्तों को रोकता है। तो यहाँ पर क्या है? असल चीज क्या है? असल जड़ क्या है? आखिरत का इनकार। जब आखिरत पर यकीन नहीं होता तो क्या होता है? देखिए आखिरत ही नहीं, है ही नहीं, बल्कि आप बैठोगे घरों में, तो इसका मतलब आप कभी अपने आप को, एक तो अल्लाह से नहीं डरोगे, और अल्लाह से नहीं डरेंगे तो फिर हम जालिम बनेंगे, हम सरकश बनेंगे। क्यों? हमें डर नहीं अल्लाह का, अपने मास्टर का डर नहीं। जब डर नहीं होता तो हम कुछ का कुछ करने लग जाते हैं, गलत चीजें करने जाते हैं, गुनाह करने लग जाते हैं। क्यों? हमें कौन पूछने वाला है? तो ये तमाम चीजें देखिए शैतान के वसवसे हैं, शैतान ने जो हमारे रास्तों में बिछाए हुए हैं वसवसे। तो दीन में ये लोग बिगाड़ पैदा करते हैं। इसके ऊपर हदीस क्या है? जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज दाखिल की जो इसमें से नहीं, यानी हमारे दीन से नहीं है, लेकिन दाखिल करी अपने तरफ से, अपने किस्सों से दाखिल करी, या अपने होशियारी से दाखिल करी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो मरदूद है। वो चीज, वो अमल जो दाखिल किया गया है हमारे दीन के अंदर दीन कहकर, वो मरदूद है। तो यानी ये काबिले कबूल है ही नहीं, अल्लाह के यहाँ पर नाराजगी का सबब बनेंगे ये तमाम इबादतें जो हमने खुद साख्ता इबादतें बनाई हैं। तो ये हदीस क्या है? दीन में जो टेढ़ डालते हैं उसके बारे में क्लियर करती है। सबसे बड़ा जालिम कौन है? लोगों को हिदायत से रोकना सबसे बड़ा जो जालिम है। दीन को तोड़ मरोड़ कर पेश करना हलाकत का रास्ता है। फिर निजात का रास्ता क्या है? हमारा सीधा दीन है, सच्ची दावत है, और आखिरत का यकीन, यही हमारे लिए निजात का रास्ता है। आगे चलते हैं 46। وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
46 क्या है देखें, इसका मफहूम देखें। और इन दोनों जन्नत और दोजख के दरमियान एक आड़ होगी, और आराफ पर कुछ लोग होंगे जो सबको इनकी अलामतों से पहचान लेंगे, और वो जन्नत वालों को पुकारेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, मगर इसके उम्मीदवार होंगे। अभी इस जो हमने सूरा लिया है, सूरे आराफ, उसकी मेन आयत आ गई। अब ये आराफ क्या है यहाँ पर क्लियरली मालूम हो जाएगा आपको। तो इसमें अहले आराफ जिसको कहते हैं, इनका तारुफ, इनको डिस्क्राइब किया गया है। ये आराफ वाले कौन है? असहाबुल आराफ, यानी ये लोग हैं कौन? जो कयामत के दिन एक खास हालत में होंगे, एक खास जिद्दोजहद में होंगे। ये क्या है? यानी ये एक आराफ जो है, ये जगह का नाम है जो जन्नत और दोजख के बीच का मुकाम होगा। वो चाहे जैसा भी मुकाम हो, मुफस्सिरीन बहुत अलग अलग चीजें बोलते हैं। दीवार होगी, या कोई पहाड़ होगा, या कोई एक जगह प्लेन एरिया होगी, जो भी बोलते हैं, मतलब एक जगह। यानी एक तरफ जहन्नम होगी और एक तरफ जन्नत होगी, और बीच में कुछ लोग खड़े होंगे जो न जन्नती होंगे न दोज़खी होंगे। यानी अभी इनका फैसला नहीं हुआ होगा। यानी उनकी नेकियां और उनकी बुराइयां सेम टू सेम होंगी, बैलेंस जैसे बोलते ना, दोनों पढ़ रहे एक लाइन में खड़े हुए होंगे। अब अल्लाह ने क्या करना, जन्नत में डालना इनको के दोजख में डालना, कंफ्यूजन। तो ये लोग खड़े किए जाएंगे जन्नत और दोजख के बीच, तो इनको आराफ वाले कहा जाता है। देखो एक ये कुछ भी होगा, दोनों जन्नत और दोजख के बीच में होगा। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं, देखें ये लोग होंगे जो नेकियां और बुराइयां एक जैसे किए होंगे, उनका पल्ला जो है बराबर से होगा, बैलेंस में होगा। न वो जन्नत में जा सकते हैं न दोजख में जा सकते हैं, और वो खड़े होंगे। अब अल्लाह हमें कहाँ भेजेगा? तो सोचे हमें भी अभी उसमें डाल दो हमें, और सोचो हमारी क्या हालत होगी। अल्लाह अभी हमें कहाँ डालेगा? दोजख में डालेगा कि जन्नत में डालेगा? क्यों? हमें एक भी अमाल मिलता है अभी, नेक अमाल, तो हम जन्नत में जा सकते हैं। क्यों? पल्ला भारी हो सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली हैं। लेकिन दोनों पल्ले बराबर हैं। अब हम वेट कर रहे हैं अल्लाह हमारे लिए क्या फैसला सुनाता है। तो जन्नतियों को भी हम पहचानेंगे। क्यों? चेहरों से उनके, यानी उनके चेहरों पे नूर होगा, कोई स्याह होंगे, ये सब सब वहां पर अलामतें जाहिर होंगी। तो जन्नत वालों को क्या है, जन्नत वालों को ये जो आराफ वाले हैं जो खड़े हैं बीच में, वो जन्नतियों को सलाम करेंगे। मतलब इनके दिल अच्छे होंगे, कि आराफ वाले जो हैं उनका ईमान होगा दिल के अंदर, वो अच्छे लोग होंगे, और वो जन्नतियों को सलाम करेंगे। यानी इनके दिल में एक तो ईमान होगा, और इनका अंजाम इंशाअल्लाह जन्नत होगी। ऐसे ही लोग ये होंगे। तो उनकी उम्मीद की कैफियत क्या? न जन्नत में न इसमें, अल्लाह के रहमत के उम्मीदवार होंगे। यानी अल्लाह ने अपनी रहमत ने उन्हें ढांप लिया, तो ये लोग जन्नत में चले जाएंगे। ऐसे उम्मीद लगाए ये बैठे हुए होंगे आराफ वाले। यानी एक खौफ में भी होंगे और एक उम्मीद में भी होंगे। खौफ होगा, अभी जहन्नम में गए तो क्या होगा, और जन्नत की उम्मीद लगाए होंगे कि अल्लाह हमें जन्नत में डाल। दुआएं मनाजात अल्लाह से, अल्लाह हमें जन्नतियों का साथी बना दे। तो ये जब अल्लाह की रहमत के बारे में एक हदीस बता दूं मैं, कि अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा किया था, तो अपनी रहमत को अपने गजब पर गालिब रखा था। यानी अल्लाह की जो रहमत है, और अल्लाह का जो गजब है, गुस्सा, तो गुस्सा नीचे रहमत ऊपर। ये अल्लाह ने लिख दिया था शुरू में, जब इंसानों के लिए दुनिया बनाई थी। अल्लाह ने ये लिखा था कि मेरा गुस्सा कम होगा और मेरी रहमत ज्यादा होगी। कुर्बान जाएं, देखिए इस बात पर कुर्बान जाना है हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पर, कि अल्लाह ने अपने गुस्से को नीचे रखा और अपनी रहमत को ऊपर रखा। मतलब अल्लाह की रहमत बहुतों को मिलने वाली है। अल्लाह की नाराजगी के सबब बहुत कम होने वाले हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत लोगों पर होने वाली है।
تو اسی رحمت کے امیدوار کون ہوں گے؟ آراف والے ہوں گے، یعنی ان کے اعمال کے سبب انہیں نہیں ڈالا جا سکے گا، لیکن اللہ کی رحمت کی وجہ سے انہیں جنت حاصل ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں اب آخری آیت میں یہاں پر 47 آیت میں ہمیں سننے کو ملے گا۔ دیکھیں، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آپ دیکھیں جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پڑیں گی تو وہ کیا کہیں گے؟ آراف والے کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ لوگ جو دوزخ والوں کو بالکل کلیئرلی دیکھ سکیں گے، لوگوں کو بھی دیکھ سکیں گے کلیئرلی، اپنے اپنے لوگوں کو بھی دیکھ سکیں گے، تو وہ دوزخ والوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ڈر جائیں گے، ان کی حالت دیکھ کر ڈر جائیں گے، دوزخ کا نقشہ ہی دیکھ کر ان کے کلیجے بولتے ہیں نا دل کو حلق میں آ جائیں گے، ایسی حالت ہوگی ان کی۔ تو اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں گے، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ یہ دیکھیں وہ دعا کریں گے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ جو بھی ہے ہمارا جو تو کچھ کر، لیکن ان دوزخیوں کے ساتھ ہمیں شامل مت کر۔ تو یہ اس طرح سے دعائیں کریں گے، یعنی یہ کیفیت دیکھیں، ایک آراف والے جو اصحاب العراف ہیں ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، کس امید میں ہوں گے، اور کیا چاہیں گے، کیا دعائیں کریں گے، یہ تمام چیزیں دیکھیں یہاں پر پتہ چلتی ہیں۔ ان کے دل دوزخ کو دیکھ دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے، انہیں اپنی کمزوری اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوگا کہ ہم کتنے مجبور ہیں، آج کھڑے ہیں یہاں پر، ہمارا کوئی حساب نہیں ہو رہا ہے اور ہم یہاں پر کھڑے ہیں دونوں کے بیچ، اور وہ تکبر میں نہیں جائیں گے بلکہ مایوسی میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کیا کریں گے؟ عاجزی، اللہ سے محبت میں ان کے دل نرم ہو جائیں گے، اور وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں گے اور اللہ کی رحمت کو مانگیں گے۔ یہاں پر یعنی یہاں پر کیا کہا جائے گا؟ ظالموں سے برات، یعنی ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اتنے ظالموں کو دیکھ کر بیزاریں گے یہ لوگ کہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، اور اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل مت کر۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، برات مطلب بیزاری اختیار کرنا، بولتے ہیں نہیں ہم ان کے ساتھ کسی حالت میں نہیں ایک ہوں گے، بیزارنا ان کو۔ تو یہ بیزاری یہاں پر آراف والے اختیار کریں گے، تو جنت کی امید بھی وہ رکھیں گے، اور یہی کیفیت دیکھیں، یعنی وہ لوگ آراف والے کیا ہیں؟ جنت کی امید بھی ان کے اندر ہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کر لے گا۔ تو یہ جو جہنم کا خوف جو ہے اور امید جنت کی، جنت میں جانے کی امید ہے، یہی کیفیت ایک مومن کی ہونی چاہیے دنیا کے اندر، کہ ایک مومن کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے دنیا کے اندر؟ اسے دوزخ کا خوف ہونا چاہیے، کانپنا چاہیے، دوزخ کا نام سن کر کانپنا چاہیے، اور اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جنت کی، اللہ کی رحمت کی، اس طرف اس کی امید ہونی چاہیے، اور اسی کیفیت میں ایک مومن کو زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ایک حدیث یہاں میں بتاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتی ہے، صحیح مسلم کی ہے یہ، اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں کیسا عذاب ہے تو وہ جنت کی امید نہ رکھے، یعنی ایک مومن جو ہے اس کو اگر پتہ چلے ڈیٹیل اللہ کی کیسے کیسے عذاب ہیں تو اس کو جنت کی امید ہی نہیں ہوگی، پھر مطلب ایسے عذاب ہیں اللہ کے، تو وہ جنت کی امید اس کو آئیں گی ہی نہیں، اتنا خوفناک ہے یہ منظر۔ اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کیسی رحمت رکھتا ہے، یعنی کافروں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا نرم دل ہے، کتنا ستار ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، اور کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور اس کی رحمت ہوتی کیا ہے، تو وہ جنت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ یعنی ایک کافر ہوتا ہے نا، اس کا آخر میں پتا چلتا ہے ارے اللہ ایسا ہے، اللہ کی جنت ایسی ہے، اللہ کی رحمت ایسی ہے، تو کیوں نہ میں توبہ کر لوں،
आखिरी वक्त में कहीं ना कहीं जाकर एक बंदे को पता चलता है, काफिरों को, कि मैं क्यों ना तौबा पढ़ लूं और अल्लाह अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आऊं। तो उस वो कभी करेगा ये जब वो अल्लाह को पहचानेगा, अल्लाह की रहमत को पहचानेगा, अल्लाह की मोहब्बत को जब वो पहचानेगा, तो वो उसके दिल में होगा कि अल्लाह जरूर बिल जरूर मुझे माफ फरमाएगा और मुझे जन्नत देगा। यानी ऐसी अल्लाह की रहमत है। दिस इज द क्वालिटी, बट वी मस्ट नो द क्वालिटी। अल्लाह की क्वालिटी मोहब्बत की हमें जाननी है, अल्लाह की रहमत क्या है ये हमें समझनी है। तब जाकर हम उम्मीदवार होंगे कि अल्लाह हमें कभी भी जहन्नम में नहीं डालेगा, बल्कि अल्लाह हमें क्या करेगा, जन्नत में डालेगा। तो ये इस तरह से एक हदीस जो मिलती है। और एक हदीस जो मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जिस कौम से मोहब्बत करता है, यानी जो कौम से वो मोहब्बत करता है, कयामत के दिन वो इन्हीं के साथ होगा। यानी हम अकेले अकेले तो न दोजख में होंगे ना जन्नत में होंगे, हम तो बहुत होंगे ना। हम कौमे की कौमें होंगी ना जन्नत में या दोजख में। नौज बिल्ला, दोजख का नाम तो नौज बिल्ला, अल्लाह पना, अल्लाह की पना। लेकिन बोलती हूँ हम जहां भी होंगे, हम अपनी कौम के साथ होंगे। तो हमारी कौम को क्या होना है, हमारी कौम को ईमानदार, वफादार, फरमा बरदार, इताअत गुजार, सब कुछ हमारी कौम को होना चाहिए। मुझे अकेले अकेले को नहीं होना चाहिए। तो ये जमात होनी चाहिए पूरी। तो इस हदीस से हमें पता चलता है। तो ये तमाम चीजों का हमें सबक क्या है? जहन्नम को देखकर अल्लाह की तरफ रुजू करना, मोमिन की जिंदगी खौफ और उम्मीद के दरमियान झूलना है। यानी एक मोमिन जो है, उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? खौफ प्लस उम्मीद, ये दोनों के बीच होनी चाहिए। खाली उम्मीद ही लगानी नहीं चाहिए, बल्कि डरना भी है अल्लाह के अजाबों से, अल्लाह की जहन्नम से। खौफ भी खाना है। और जालिमों के रास्ते से दिल और अमल दोनों से दूरी इख्तियार करनी है। यानी जालिमों के रास्ते से हमें कितनी दूरी रखनी है, कि हमें खुद को मतलब सोचना चाहिए। दुआ और निजात सबसे बड़ा सहारा है। यानी दुआ के बगैर कोई निजात नहीं। अल्लाह से हमें निजात मांगनी पड़ेगी, तब जाकर हमें निजात मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा लेसन जो है, जो आखिर में हमें यहाँ पर इस रुकू के अंदर मिलता है, कि अल्लाह से मायूस, अल्लाह की रहमत से या अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। चाहे जितने भी गुनाह हो हमारे साथ, वो क्या बोलते हैं ना, दरिया के, वो समुद्र के झाग के बराबर ही गुनाह क्यों ना हमारे, लेकिन अल्लाह की जात से कि वो हमें नहीं बख्शेगा, इससे हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमतों से हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए। जैसे जिस दम हमारे आंख खुलती है, वहीं सवेरा समझना चाहिए और अल्लाह की तरफ हम सबको रुजू करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने इतने गुनाह करे, मैंने आज तक नमाजें नहीं पढ़ी, मैंने आज तक रोजे नहीं रखे, मैं इतनी गुनेगार उतनी गुनेगार, मेरे से ऐसे गुनाह वैसे। कोई बात नहीं। अल्लाह ताला की जात को जिस दिन तुम समझोगे, ये तमाम चीजें तुमने जो करी हैं वो छोटी पड़ जाएंगी। और दिल खोल कर अल्लाह की तरफ हम रुजू करना है, अल्लाह से मोहब्बत करना है। अल्लाह से ऊपर कोई नहीं, अल्लाह से ऊपर किसी की जात शामिल नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं, आज जो कुछ हमने सीखा समझा, सिर्फ सीखने समझने तक नहीं, बल्कि हमें ये तमाम चीजें अल्लाह तौफीक दे हमारे अमल में लाने की। और जब तक हम सबको जिंदा रखे, दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के लिए ऐलान आप सबके लिए।
कल इंशाल्लाह हम स्पेशल लेक्चर रखने वाले हैं, बयान मेरा ऑन शाबान का महीना, फजीलतों और रहमतों वाला महीना लगा हुआ है, उस पर मैं कल बयान दूंगी इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि कल की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और इस मेरे बयान से फायदा भरपूर उठाने की कोशिश करें।